Good morning, friends. In today's lecture, we are going to study about reconstitution of partnership firm. Now, what do you understand by reconstitution? Okay, it is like alteration, or you can call it as a novation. If any partner, new partner get admitted in a partnership firm, or if the existing partner goes out of the partnership firm, then it is called as a reconstitution of partnership firm. Now, what are the outcome if there is any kind of a reconstitution? That is, if new partner is admitted, or if any partner goes out of the partnership firm by way of a retirement, or by death, or by way of insolvency, or if any partner is expelled from the partnership firm, then what are the outcomes that we are going to refer over here? Now, what it has been given. Refer on your screen. Reconstitution, that means change in firm on account of admission, on account of retirement, expulsion, insolvency and death of the partner. Now, these are, in all these cases, it is called as a reconstitution of partnership firm. And in case where there are only two partners, and if one of the partner get retired, or one of the partner, there is a death of one of the partner, or if there is an insolvency of one of the partner, where there are only two partner, in that case the partnership firm will get dissolved. These are some of the cases, and what are the outcome in all these cases we are going to refer in today's lecture. You can see on your screen that, okay, if it is about incoming partner, that is admission, what are the conditions we are going to refer in detail. What they have given. Incoming and outgoing partner. First we are going to refer for incoming partner. Any change in the relation of partner will result in the reconstitution of partnership firm. Any change in the relation, in the sense, if a new partner come into an existing partnership firm, or if there are more than two partners and one of the partner goes out of the partnership firm by way of retirement, death, etc., then you will have to prepare a supplementary deed, and that supplementary deed will be by way of reconstitution of partnership firm. Thus, on admission of a partner, new partner, or retirement of a partner, or expulsion of a partner, expulsion का मीनिंग क्या है कि किसी पार्टनर को बाहर का रास्ता दिखा देना, यानी निकाल देना पार्टनरशिप फॉर्म से, or an insolvency, etc., a firm will be reconstituted. Now, first one, section 31 is all about an incoming partner, that is a new partner admitted in the existing partnership firm. What it has been said. Subject to the contract between the partners, no person can be admitted as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. This is a first foremost important condition for admitting a new partner in a partnership firm. You will have to obtain the consent of all the partners. There has to be a unanimous consent, and only then आप new partner को existing partner में admit कर सकते हो. कोई पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरा 90% पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर है, तो मैं अपने लड़के को एज अ पार्टनर या अपने वाइफ को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में लेके आऊंगा. तो यहाँ से मेजर शेयर होने का कोई, आई मीन, इट डज नॉट गिव यू अ राइट टू ब्रिंग अ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म अनलेस एंड अनटिल you obtain the consent of all the other partners. सभी partners का consent अगर positive है, तो only then you can admit a new partner in a partnership firm. What further it has been said, liability of an incoming partner. एक important rule ऐसा है कि अगर new partner partnership firm में admit होता है, तो उसके admission के पहले की जो liability है, उसके लिए वो incoming partner will not be responsible, because वो उसके रहते हुए इनकर्ड नहीं हुई है, उसके पहले इनकर्ड हुई है. He will be responsible only for those particular liability which is incurred since his inception. उसके आने के बाद जो भी लाइबिलिटी इनकर्ड होंगी, उसकी जिम्मेदारी वो न्यू पार्टनर पर रहेगी, अनलेस एंड अनटिल वो न्यू पार्टनर
प्रीवियस लाइबिलिटीज को भी अपने सर पे लेता है तो, लेकिन इसके लिए क्रेडिटर्स ने हाँ बोलना चाहिए, यानी जिसको पैसा देना है उसका कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। इवन दो पार्टनर्स बिटवीन देमसेल्फ डिसाइड दैट कि न्यू पार्टनर जो है प्रीवियस लाइबिलिटी को उसके सर पे लेता है, उसका शेयर जितना भी बनेगा उतना लाइबिलिटी वो उसके सर पे लेता है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि क्रेडिटर्स बाय डिफॉल्ट उसको हाँ बोलेगा। आपको क्रेडिटर्स का भी परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस लाइबिलिटी का एग्रीमेंट इज बिटवीन द प्रीवियस पार्टनर्स एंड दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर्स। न्यू पार्टनर्स का उससे कोई, देयर इज अ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रीवियस पार्टनर्स एंड दैट पर्टिकुलर आउटसाइडर्स। तो जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट का ये न्यू पार्टनर पार्ट नहीं है। तो दैट्स द रीजन, अगर इवन दो न्यू पार्टनर बाकी के पार्टनर्स से एग्री भी होता है कि मैं प्रीवियस लाइबिलिटीज का भी पोर्शन अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं, तो वो उनके बीच में एग्रीमेंट रहेगा। क्रेडिटर्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर क्रेडिटर्स से उसको लाइबल ठहराना है, वो क्रेडिटर्स भी उस पर्टिकुलर न्यू पार्टनर्स को वो लाइबिलिटी के लिए एडमिशन देता है, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस देयर हैज टू बी, ही हैज टू एडमिट दैट इन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, यानी आपको क्रेडिटर्स का भी कंसेंट लेना पड़ेगा। अदरवाइज new partner will be liable only for those liability which is incurred since his inception। उसके आने के बाद जो liability incurred होंगी सिर्फ उसकी जिम्मेदारी वो new partner लेगा। तो what it has been said, a new partner become liable for the debt and act of the firm only from the date he is admitted as a partner। he cannot be held liable for act of the old firm, यानी old liabilities के लिए वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। A new partner में however, लेकिन हो सकता है कि न्यू पार्टनर प्रीवियस लाइबिलिटीज को भी लेने के लिए तैयार हो जाए। ये डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस के किसको कितनी जरूरत है। अगर पार्टनरशिप फर्म को न्यू पार्टनर की जरूरत है तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस वो न्यू पार्टनर डोमिनेट करेगा और बोलेगा कि मैं प्रीवियस लाइबिलिटी नहीं लूंगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म वेल सफिशिएंट है और न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म की जरूरत है, तो इन दैट केस द पार्टनरशिप फर्म विल डोमिनेट द न्यू पार्टनर एंड न्यू पार्टनर मे एग्री टू टेक द प्रीवियस लाइबिलिटीज आल्सो। A new partner may however agree to be liable for debt existing prior to his admission, यानी previous liabilities, but such agreeing will not give to a prior creditor the right to sue him because the absence of privity of contract। Even though new partner previous liability को लेने तैयार हो जाए, but still creditors को वो राइट्स नहीं मिलेंगे कि वो न्यू पार्टनर के ऊपर भी पुरानी लाइबिलिटीज के लिए उसके ऊपर केस फाइल करे, क्योंकि पुरानी लाइबिलिटीज का एग्रीमेंट पुराने पार्टनर्स और क्रेडिटर्स के बीच में है। तो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू पार्टनर। ही विल बी लायबल टू द अदर को पार्टनर्स ओनली, यानी वो लाइबिलिटी लेने तैयार है बिटवीन देमसेल्फ, बिटवीन अदर पार्टनर्स, लेकिन क्रेडिटर्स उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रेडिटर्स का एग्रीमेंट जो है वो पुराने पार्टनर से नए पार्टनर से नहीं है। द क्रेडिटर्स कुड मेक हिम लायबल इफ ही हैड एग्रीड विद देम एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली फॉर बीइंग लायबल टुवर्ड्स देम फॉर द पास्ट डेट। दैट मीन्स अगर उस एग्रीमेंट में वो न्यू पार्टनर को भी पार्टी बना लेता है, तो मीनिंग क्या है कि क्रेडिटर्स ने अपना कंसेंट दे दिया कि उसको जो पैसा रिकवर करना है वो अब ओल्ड पार्टनर टुगेदर विद द न्यू पार्टनर से रिकवर करेगा। Thus the creditor consent is necessary in every case to make the transaction operative. Novation is a technical term in a contract for this substituted liability. That means they will have to prepare a new contract in which the new partner will admit the liability for the old debts. Otherwise, new partner will not be liable for the old debts. In case of partnership of two partner, in case of partnership of two partner, this section does not apply to a partnership of two partner which is automatically dissolved by the death of one of them
In this event, there is no partnership at all for any new partner to be introduced into it without the consent of the other. Now the thing is, अगर suppose दो पार्टनर है और उसमें से अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अगर डेथ हो गई और फिर आप बोलते हो कि नाउ आई वांट टू रिकॉन्स्टिट्यूट अ न्यू फॉर्म एंड आई वांट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, सो दैट, क्योंकि पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पार्टनर्स। अब 2 पार्टनर में से एक की डेथ हो गई और अब आप न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब 2 पार्टनर थे और एक की डेथ हो गई तो वो मोमेंट देयर इज ओनली 1 पर्सन and 1 person cannot constitute a partnership, so that particular partnership will automatically get dissolved. अब आपको अगर वो न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो यू विल हैव टू प्रिपेयर अ न्यू पार्टनरशिप। आपको पुराना पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनर के डेथ होने के वजह से सिर्फ एक पार्टी रह गया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपका डेथ हुआ, एक पार्टनर का डेथ हुआ और इमीडिएटली यू हैव एडमिटेड अ न्यू पार्टनर। यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज द मोमेंट 1 पार्टनर की डेथ हो जाएंगी तो एक ही पर्सन रहेगा और एक पर्सन से पार्टनरशिप नहीं बन सकता है, तो वो मोमेंट पे पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व। अब आपको अगर न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो वो एडमिशन नहीं माना जाएगा, आपको अब ऑल टुगेदर न्यू पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा। तो इन द केस ऑफ डेथ, if there are only 2 partner and एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वह एडमिशन will not get affected, that partnership will get dissolved. What it further says, retirement of the partner, section 32. रिटायरमेंट, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर्ड होके जाता है। We have already seen that if the retiring partner was an active partner in the old firm, in that case it is mandatory for that retiring partner to give a public notice within a period of 6 months in order to absolve himself from further liabilities. अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो जो भी लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म आगे इनकर्ड करेंगी आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उसकी लाइबिलिटी भी वो रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर आएंगी। इसीलिए ये जरूरी है कि पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनरशिप फर्म से वो रिटायर्ड होता है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ही शुड गिव अ नोटिस। ये नोटिस देना पार्टनरशिप फर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हो सकता है कि वो रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई लाइबिलिटी इनकर्ड कर दे और आउटसाइडर को ये पता ना हो कि ये अभी पार्टनर ना है, तो वो लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के सर पे आएंगी। तो ये नोटिस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि पार्टनरशिप फर्म अगर कोई लाइबिलिटी इनकर्ड करती है तो रिटायरिंग पार्टनर पे ना आए, और रिटायरिंग पार्टनर अगर फर्म के नाम से कोई लाइबिलिटी इनकर्ड करता है तो वो फर्म पे ना आए। तो इसीलिए वो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। व्हाट इट हैज बीन गिवन, a partner is said to retire when he ceases to be the member of the firm without bringing to an end to the subsisting relation between the other partner or between the firm and the third parties. If there are more than 2 partners, if one of the partner get retired, other partner may continue with the partnership firm will not get dissolved. Section 32 lays down a partner may retire with the consent of all the other partner. A partner अगर उसको लगता है कि he is not able to give a sufficient time or for any other reason, if he want to get out from that particular partnership firm with the consent of other partner, he can get retired. Or in accordance with an express agreement by the partners, in accordance with the express agreement with the partners in the sense it has been already previously decided कि मिस्टर एक्स आफ्टर 2 years विल गेट रिटायर्ड, यानी ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट था कि एक पर्टिकुलर पार्टनर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विल गेट रिटायर्ड, तो वो जैसी एक्सपायरी डेट आएगा वो दैट पर्टिकुलर पार्टनर विल गेट रिटायर्ड। और व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल by giving a notice in writing to all other partner of his intention to retire. अगर at will है, I told you that कि अगर पार्टनरशिप इज एट विल है तो चाहे मर्जी जब तक, तो अगर किसी पार्टनर को मर्जी में आता है कि नहीं मुझे अब निकलना है,
तो he will give a notice to other partner and he can get retired from the partnership firm. तो ये रिटायरिंग पार्टनर के लाइबिलिटी के बारे में क्या बोला है? लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर फॉर एक्ट डन प्रायर टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट तक जो भी लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की रहेंगी, उसका जो भी शेयर वो रिटायरिंग पार्टनर का आता है, वो पर्टिकुलर शेयर उसको देना पड़ेगा. A retiring partner continues to be liable for act of the firm done before his retirement. He may, however, free himself from his liability towards the third party for the debt of the firm incurred before his retirement by an agreement with such third party and the partner of the reconstituted firm, discharging the outgoing partner from old liabilities. What is the general rule? कि अगर रिटायरिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर्ड होता है तो वो डेट तक जो भी लाइबिलिटी आउटसाइडर्स को पे करना है, उसका जो भी उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बनता है उतना पेमेंट उसको देना पड़ेगा. लेकिन इसके विरुद्ध, इसके कॉन्ट्ररी एक रिटायरिंग पार्टनर एग्रीमेंट बना सकता है जहां पे वो अपने आप को एब्सॉल्व कर लेगा, यानी रिलीफ कर लेगा कि मैं प्रीवियस लाइबिलिटीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा. लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए उसको थर्ड पार्टी और जो बाकी के पार्टनर्स है उनके साथ उनका कंसेंट लेना पड़ेगा. ये कब हो सकता है? जब सपोज दैट पर्टिकुलर retiring partner was like a sleeping partner, he was no way involved in the management. In that circumstances he may request the other partners that कि मेरा कोई लेना देना था नहीं, तो उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो भी किया है आप लोगों ने किया है और अभी तक आप अच्छे से चला रहे हो, आप ही वो डेब्ट को पे करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है. तो ही मे एग्री विद द अदर पार्टनर्स एंड अदर पार्टनर आल्सो एग्री वॉलंटरली विद दैट रिटायरिंग पार्टनर. इन द सेम मैनर third party will also get agree to all this. So in that circumstances he may absolve himself from the previous liability also. तो एक एग्रीमेंट बना लेंगे और उसमें बोलेंगे और कंसेंट ले लेंगे कि वो जो भी पुरानी लाइबिलिटीज है उसमें वो अपने आप को छुटकारा पा ले रहा है. तो वैसा अगर एग्रीमेंट हो गया तो फिर थर्ड पार्टी जो है उस रिटायरिंग पार्टनर को लाइबिलिटी के लिए आई मीन ही कैन नॉट हेल्ड दैट रिटायरिंग पार्टनर लाइबल, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी के कंसेंट से और जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके कंसेंट से अपने आप को छुड़ा लिया है. तो उस केस के अंदर वो प्रीवियस लाइबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार नहीं रहेगा. The remaining partner alone cannot give the freedom to the retiring partner. He may be discharged only if the creditors agree. यानी पुरानी लाइबिलिटी से अगर अपने आप को छुड़ाना है तो उसको पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का भी कंसेंट लेना पड़ेगा और क्रेडिटर्स का भी कंसेंट लेना पड़ेगा. Liability of retiring partner for act of the firm post retirement, after his retirement. उसके रिटायरमेंट के बाद अगर पार्टनरशिप फर्म कोई लाइबिलिटी इनकर्ट करता है तो वो लाइबिलिटी की जिम्मेदारी रिटायरिंग पार्टनर पे नहीं आएंगी. अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, और अगर वो एक्टिव पार्टनर नहीं है तो उस केस में उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है. अ रिटायरिंग पार्टनर also continues to be liable for act of the firm even after retirement until a public notice is given of the fact of the retirement. Similarly, the partner of the reconstituted firm continue to be liable for the act of the retired partner though done after retirement and the public notice is given. मैंने आपको बताया कि अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, और वो दोनों के लिए एडवांटेज. दोनों के लिए कैसा कि अगर रिटायरमेंट के बाद फर्म कोई लाइबिलिटी इनकर्ट करती है तो उसकी जिम्मेदारी उस रिटायरिंग पार्टनर के सर पे नहीं आना चाहिए. उसी तरह अगर रिटायरिंग पार्टनर फर्म के नाम से कोई लाइबिलिटी इनकर्ट कर देता है तो वो लाइबिलिटी फर्म के ऊपर नहीं आना चाहिए. यानी दोनों अपने आप को इस लाइबिलिटी से छुड़ाना चाहते हैं, तो वो लाइबिलिटी से कब उनको छुटकारा मिलेगा? जब पब्लिक नोटिस दी जाएगी. तो पब्लिक नोटिस कैन आइदर बी गिवन बाय द रिटायरिंग पार्टनर और अदरवाइज पब्लिक नोटिस कैन बी गिवन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फर्म. अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि ये बंदा, ये जो रिटायर हो गया है जो बंदा, वो फर्म के नाम से कोई लाइबिलिटी इनकर्ट कर देगा तो फर्म प्रॉब्लम में आ जाएगी.
इसीलिए पार्टनरशिप फर्म कैन गिव अ पब्लिक नोटिस। या फिर रिटायरिंग पार्टनर को लगता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो मेरे नाम से कुछ लायबिलिटी इनकट कर दे, फर्म के नाम से कोई लायबिलिटी इनकट कर दे, तो उसकी जिम्मेदारी उस पर भी आ सकती है, तो वो नोटिस रिटायरिंग पार्टनर दे सकता है। तो नोटिस कैन बी गिवन बाय आइदर ऑफ द पार्टी। सच पब्लिक नोटिस में बी गिवन आइदर बाय द retiring partner or by any partner of the reconstituted firm. A dormant or sleeping partner, however, need not give any such notice. स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस स्लीपिंग पार्टनर के बारे में आउटसाइडर्स को शायद पता ही नहीं रहता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर था, तो इसीलिए उसको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक्टिव पार्टनर के केस में नोटिस देना जरूरी है। नोटिस कैन आइदर बी गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म और कैन आइदर बी गिवन बाय द रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी सेक्शन 33 इज एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर। एक्सपल्शन यानी किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकाल देना इज कॉल्ड एज एन एक्सपल्शन। अब यहाँ पे क्या कोई भी पार्टनर को आप एक्सपेल कर सकते हो? मेजॉरिटी पार्टनर्स मिलके अगर सपोज उससे खुन्नस है, उससे झगड़ा हो गया, तो क्या मेजॉरिटी लोग मिलके किसी माइनर इन द सेंस किसी एक या किसी दो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकाल सकते हैं? तो आंसर इज नो। देयर आर सर्टेन special conditions that has to be fulfilled prior to the expulsion of that particular partner. What are the rule has been given under section 33? What they are given? A partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners save in the exercise in good faith of power conferred by the contract between the partner. That means majority of the partners cannot remove any partner unless in good faith. Good faith क्या है वो अभी अपन देखेंगे। When it will be called as a good faith, यानी good faith में कब majority partners किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकाल सकते हैं, उसको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो what is most important condition is there should be a good faith. And what is good faith that we are going to refer. सेक्शन 33 का एनालिसिस क्या बोलता है? द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। यानी सेक्शन 33 एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर का यूटिलाइजेशन करना है। सेक्शन 33 को अगर यूज करना है, किसी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फर्म से निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंडीशन ये है कि आपके डीड के अंदर एक्सपल्शन का क्लॉज चाहिए। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन का क्लॉज नहीं है, तो आप सेक्शन 33 को यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको सेक्शन 33 का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो आपको आपकी पहले डीड देखनी पड़ेगी कि उसमें एक्सपल्शन का क्लॉज है या नहीं। अगर उसमें एक्सपल्शन का क्लॉज नहीं है, तो आपको पहले उसमें एक्सपल्शन का क्लॉज इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन फिर तकलीफ ये आ सकती है कि उस एक्सपल्शन को क्लॉज में अगर आप बाद में इंक्लूड करते हैं, तो उसमें सभी पार्टनर की सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, और अगर आप उस पार्टनर को जिसको एक्सपेल करना चाहते हैं, तो वो साइन नहीं देगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब when you enter into a new partnership, at that time itself there has to be a clause of expulsion in a partnership deed. Second, the power has been exercised by a majority of the partner. तो पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपके पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन का क्लॉज चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि एक्सपल्शन कैन बी एक्सरसाइज बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर। जस्ट इमेजिन देयर आर 4 पार्टनर्स A, B, C, D। तो उसमें से ये D पार्टनर ने कुछ गड़बड़ की है और उस पार्टनर को आपको एक्सपेल करना है। You want to remove that partner. अब एक्सपेल करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि पार्टनरशिप डीड में आपके पास एक्सपल्शन का क्लॉज चाहिए। तो वहां एक्सपल्शन का क्लॉज है, ओके फाइन। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इट शुड बी यूटिलाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर। यानी अगर ये तीनों पार्टनर या फिर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर यानी A और B अगर ये D को निकालना चाहते तो निकाल सकते, लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और वो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ऑफ अ गुड फेथ।
बराबर. तो मेजॉरिटी पार्टनर कैन रिमूव द पार्टनर. सेकेंड वन, देयर हैज टू बी अ क्लॉज इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. And third important condition is it should be exercised in good faith. Now what is a good faith? We'll try to understand. यानी ऐसी आप किसी को भी नहीं निकाल सकते. Good faith का clause होना चाहिए. यानी even though if there is a clause in a partnership agreement, even though that particular right is exercised by the majority of the partner, but together with these two conditions, what is most important condition is about a good faith. अगर good faith का condition satisfy नहीं होता है तो आप किसी partner को निकाल नहीं सकते. You cannot simply remove any partner from the partnership firm. Now what is a good faith? What does it further says? If all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be in a bona fide interest of the business of the firm. So what are the conditions? There has to be a clause in the partnership agreement. The right should be exercised by the majority of the partner, and that those rights should be exercised in good faith. Now what is a good faith? The test of good faith as required under section 33(1) includes three things. The expulsion must be in the interest of the partnership. आप क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि आप आपकी पार्टनरशिप को बचाना चाहते हो. क्योंकि हो सकता है कि जिस पार्टनर को आप निकालना चाहते हो वो पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यूसली फ्रॉड कर रहा है, मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है, धोखा दे रहा है. तो ये कंडीशन के अंदर वो नेग्लिजेंट है अपने परफॉर्मेंस के अंदर, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है. तो इसमें आप क्या बोलेंगे? यू वांट टू सेव योर पार्टनरशिप बाय रिमूविंग दैट पर्टिकुलर पार्टनर. तो दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप. द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व विद द नोटिस. नो डाउट ऑल दिस कंडीशन एग्जिस्ट. ही इज कमिटिंग अ फ्रॉड, he is misappropriating the money, he is doing the mistake, he is negligent in performance of duty. All this condition exist. लेकिन आप ये कंडीशन एग्जिस्ट होने के बावजूद भी आप उसको सिंपली रिमूव नहीं कर सकते. यू विल हैव टू गिव हिम अ नोटिस कि हम आपको ये कारणवश, ये ऑल रीजन, दीज आर ऑल दीज रीजन यू हैव डन ऑल दिस. आपने मिस्टर एक्स से पैसा लिया था, फॉर्म में डिपॉजिट नहीं किया, मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, आपने किसी बाहर वाले को गुड सप्लाई किए थे, परस्पर उससे आपने पैसा ले लिए, आप कुछ एग्रीमेंट कर रहे हो लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसके वजह से पार्टनरशिप फॉर्म पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आपको क्यों ना रिमूव कर दे. तो ऐसी नोटिस आपको उस पार्टनर को देनी पड़ेगी जिसको आप निकालना चाहते हो. और तीसरा, ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यानी एज अ नेचुरल पर्सन आपको उसको चांस देना पड़ेगा. दैट मीन्स यू विल हैव टू गिव हिम अ नोटिस, एंड आफ्टर दैट उस नोटिस में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि ये सब कंडीशन नहीं है तो आप आपका इनोसेंस प्रूफ करो. तो ये सब चीजें अगर आप करते हो, and only then he is not able to prove his innocence or he is not able to give the reply to your notice, only in that circumstances it is proved that he is a problem to the partnership firm, and then you can remove that particular partner. Otherwise you cannot remove. तो क्या चीजें? सबसे पहले कि आप whenever if the question is asked as regard to expulsion section 33 को किस तरह डिफाइन करना है कि आप किसी पार्टनर को कब रिमूव कर सकते हैं. कंडीशंस आर के वो पर्टिकुलर एक्सपल्शन का क्लॉज आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चाहिए. दैट क्लॉज, दैट राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी, एंड ओनली दैट राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ. नाउ व्हाट इज अ गुड फेथ? फर्स्ट इज removal of that particular partner is in the interest of the partnership firm. He has been served with a proper notice of removal, and then थर्ड इंपॉर्टेंट इज ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यानी उसको आप चांस दे रहे हो कि आप बताओ, हमको तो ऐसा लगता है आपने ये सब किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ये नहीं किया है तो आप आके अपना इनोसेंस प्रूफ करो. तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी.
If a partner is otherwise expelled, the expulsion is null and void. यानी ये सब चीजें अगर एग्जिस्ट नहीं हो रही है या फिर ये प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया है तो एक्सपल्शन कोर्ट में स्टैंड नहीं होगा. एक्सपल्शन विल बी नल एंड void. वो पार्टनर जिसको आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और रिमूव कर दिया तो इज एंटाइटल्ड टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. और कोर्ट क्या जजमेंट देगा कि जिसको आपने रिमूव किया है वो गलत किया है, आप उसको रीइंस्टेट करो आपके पार्टनरशिप फॉर्म में. The expulsion of the partner does not necessarily result in dissolution. The invalid expulsion of a partner does not put an end to the partnership even if the partnership is at will and it will be deemed to continue as before. यानी invalid expulsion will not result in a correct expulsion. Example देखिए क्या है, interesting example. A, B and C are partner in a partnership firm. They were carrying their business successfully for the past several years. Spouses of A and B, that is wife of A and B, fought in a ladies club on their personal issue and A's wife was hurt badly. A got angry about the incident and he convinced C to expel B from their partnership firm. B was expelled from the partnership firm without any notice from A and C. क्या केस हुआ है? A, B और C तीन पार्टनर्स है, अच्छे पार्टनर्स है. A और B के वाइफ का लेडीज क्लब में झगड़ा हो गया और उसमें हुआ क्या कि ए की वाइफ को काफी हर्ट हो गया. तो उस सर्कमस्टेंसेस ने ए ने सी को कन्विंस किया कि अपन बी को पार्टनरशिप फर्म से निकाल देते. यानी पर्सनल इश्यू था ए और बी का के वाइफ का, दैट वाज अ पर्सनल इश्यू, लेकिन वो पर्सनल इश्यू घर तक गया एंड ए ने क्या किया, सी को कन्विंस किया कि बी को अपन निकाल देते. और रीजन क्या था कि बी की वाइफ का ए की वाइफ से झगड़ा हुआ था, यानी पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं था. ए ने सी को कन्विंस कर लिया कि बी को निकाल देते और उन्होंने बी को निकाल दिया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज द एक्सपेल्शन करेक्ट? ऑब्वियसली आंसर इज नो. Considering the provision of the Indian Partnership Act state whether they can expel a partner from the firm, obviously they cannot expel because the condition of good faith is not satisfied. It was not in the interest of the partnership firm. So what it has been said, a partner may not expel from a firm by majority except in a good faith of power conferred by the contract between the partner. It is thus essential that power of expulsion must have existed in the contract. That means it should be in an agreement. The power should be exercised by majority and it has to be exercised in good faith. And what is a good faith? Okay, it should be in the interest of the partnership firm. A proper notice should be served to the partner and he should be given an opportunity of being heard. अगर ये चीज नहीं है तो गुड फेथ नहीं माना जाएगा और वो गुड फेथ अगर नहीं है तो एक्सपल्शन विल बी नल एंड void. If all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be bona fide interest of the business of the firm. Thus, according to the test of good faith, expulsion of partner B is not valid. Here it has been clearly said that the expulsion is not valid. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर, अगर दो पार्टनर है और दो में से अगर एक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म विल ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व. अगर दो से ज्यादा पार्टनर्स है और उसमें से अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप में कंटिन्यू. स्टार्टिंग में जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे उसमें यू विल इंक्लूड अ क्लॉज दैट कि if there are more than two partners, if any of the partner become insolvent, the remaining partner will continue in the partnership firm. तो अगर किसी पार्टनर को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया ना, व्हाट इज एन इंसॉल्वेंट, कि अगर वो पर्टिकुलर पार्टनर बर्बाद हो गया, उसकी डेप्ट, उसके पर्सनल डेप्ट पर्सनल लाइबिलिटीज से डेप्ट पर्सनल एसेट से इंक्रीज हो गए तो उसको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा. एंड एज सुन एज दैट पर्टिकुलर पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, at that point of time his connection with the partnership firm will get break. As per section 10 of the Indian Contract Act, we have seen that insolvent is not a competent party to enter into a valid contract. So in the same manner कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है
तो या कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका कनेक्शन पार्टनरशिप फर्म से ब्रेक हो जाएगा, उसका कनेक्शन टूट जाएगा और वो इंसॉल्वेंट की जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी दैट विल गो इन द हैंड्स ऑफ दैट ऑफिशियल असाइनी और अ रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट उसके बिहाफ पे एक एजेंट को अपॉइंट करेगा जो पूरे उसकी प्रॉपर्टी को देखभाल करेगा और डिसाइड करेगा कि वो प्रॉपर्टी बेच के किसको प्रोपोर्शनेटली कितना पैसा देना है। तो वो पर्टिकुलर इंसॉल्वेंट का कनेक्शन उसके इंसॉल्वेंट डिक्लेरेशन के वक्त पार्टनरशिप फर्म से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और उसकी स्टेट जो भी ऑफिशियल असाइनी के हाथ में जाएंगी वो स्टेट की पार्टनरशिप फर्म की जो भी लायबिलिटी उसके इंसॉल्वेंट होने के बाद जो आती है वो उस इंसॉल्वेंट की स्टेट प्रॉपर्टी उस डेब्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी। प्रीवियस लायबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी लेकिन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी वो लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी की जिम्मेदारी नहीं लेंगी। When a partner in a firm is adjudicated and insolvent, adjudicated का meaning है declared by the court of law as insolvent, he ceases to be a partner on the date of order of adjudication whether or not the firm is thereby dissolved. इंसॉल्वेंट जैसे डिक्लेयर होगा उसका कनेक्शन पार्टनरशिप फर्म से ब्रेक हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू इफ देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, तो अदर पार्टनर्स में कंटिन्यू इन द ओल्ड फर्म। ही स्टेट यानी उसकी प्रॉपर्टी विच द देयर अपॉन वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी, यानी वो जो इंसॉल्वेंट रहेगा उसकी पूरी जितनी प्रॉपर्टी एसेट्स रहेंगे इट विल उसके पूरे राइट्स किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ऑफिशियल असाइनी। ऑफिशियल असाइनी विल बी अ एजेंट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ceases to be liable for any act of the firm done after the date of the order. उसके एडजुडिकेशन के डेट जो भी डिक्लेरेशन डेट रहेंगी जब उसको कोर्ट डिक्लेयर करेगा। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने उसको 14 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया कि ही इज इंसॉल्वेंट, तो वो डेट पे उसका पार्टनरशिप फर्म से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और 14 सितंबर के बाद जो भी लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इनकट करेंगी उसकी जिम्मेदारी उस इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा। The firm also is not liable for any act of such partner after such date. उस इंसॉल्वेंट जो भी आगे 14 सितंबर को उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो आज की डेट के बाद अगर कोई लायबिलिटी वो इनकट करता है इंसॉल्वेंट फर्म के नाम से तो उसकी जिम्मेदारी भी पार्टनरशिप फर्म पे नहीं आएंगी। Now what are the effect of insolvency? What it says? The effect of insolvency of the partner is summarized as follows. The insolvent partner cannot be continued as a partner. He will be ceased to be a partner from the very date on which the order of adjudication is made. The state of insolvent partner is not liable for act of the firm done after the date of order of adjudication. The firm is not liable for any act of the insolvent partner after the date of order of adjudication. Ordinarily, the insolvency of a partner result in dissolution, but the partner are competent to agree among themselves that the adjudication of partner as an insolvent will not give rise to dissolution of the firm. अगर 2 से ज्यादा पार्टनर है तो they may continue if any of the partner get insolvent. लेकिन अगर 2 ही पार्टनर है तो उस circumstances में they will have to mandatorily get डिसॉल्व। नाउ डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो डेट पे उसका कनेक्शन पार्टनरशिप फर्म से ब्रेक हो जाएगा और उस डिसीज की स्टेट पार्टनरशिप फर्म के आगे की लायबिलिटी के लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा और डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है क्योंकि नोटिस कौन देगा, तो अगर वो पार्टनर की डेथ हो गई तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग अ पब्लिक नोटिस। ऑर्डिनरली द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर इज अ डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, बट इफ अदरवाइज सो एग्री द पार्टनर may not be dissolved unless the firm consists of only 2 partners. अगर 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा पार्टनर है और एक की डेथ हो जाती है तो दे में कंटिन्यू इन अ पार्टनरशिप फर्म।
Where a firm is not dissolved, the estate of deceased partner is not liable for any act of the firm done after his retirement. Obviously, उसके डेथ के बाद जो भी लाइबिलिटी इनकर्ड होंगी, उसकी लाइबिलिटी, जो फर्म लाइबिलिटी इनकर्ड करेगा, उस लाइबिलिटी की जिम्मेदारी उस डिसीज के स्टेट नहीं लेगा. वो डिसीज की जो भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की आगे की लाइबिलिटी की जिम्मेदारी नहीं लेगा. हिज स्टेट इज लाइबल ओनली फॉर द प्रीवियस लाइबिलिटीज, यानी जो भी पिछले लाइबिलिटीज है उसकी जिम्मेदारी लेगा, आगे की नहीं लेगा. No public notice of death is required to relieve the deceased partner state from the future liabilities. No notice देने की जरूरत है. तो this is all about death of the partner. I hope you have understood the concept.